Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, welcome to today's class. Our today's topic is Unit 4, our universe. Air and water, stepping up air, uses of air, water, sources of water, saving water. So in this chapter, we are going to discuss about air, their uses, water, sources of water and about saving water. इस चैप्टर में हम एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके यूजेस, इनके सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे आप वाटर को सेव कर सकते हैं. Engage, solve the crossword given below using the picture clues. You have to fill this or solve this crossword by seeing the picture clues. यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड दिया गया है, आपको कुछ पिक्चर क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज को आपको देखना है और इस क्रॉसवर्ड को आपको फिल करना है. Like first picture is of a rain, so you will write rain here, like in the right direction, R-A-I-N, rain. And the next picture is of what? It is water, so you will write water downward. Next picture, it is what? Air, so you will write air here. And the next picture is of ice, so you will write ice here. फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बादलों से क्या हो रही है, रेन हो रही है, तो आप यहाँ पे रेन लिखेंगे. सेकंड पिक्चर है वाटर की, आप यहाँ पे वाटर लिखेंगे नीचे की तरफ. और थर्ड पिक्चर में जो गर्ल है ये हवा खा रही है, तो आप यहाँ पे एयर लिखेंगे. एंड फोर्थ पिक्चर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये क्या है, बर्फ है, आइस है, तो आप यहाँ पे आइस लिख के इसे कंप्लीट करेंगे. We all know that both air and water play a very important role in our lives. Let us study more about air and water. So children, in this chapter we are going to learn or discuss about air and water. Both are very essential for us. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर के बारे में. दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Air is all around us. We cannot see air. Clean air is colorless. We can only feel it when it moves. Moving air is called wind. Gently moving air is called breeze. So children, air is all around us. It is in our surrounding. We cannot see the air, but we can feel it. The moving air called wind and the gently moving air is called the breeze. तो एयर बच्चों हमारे आसपास है, हम इसे सिर्फ फील कर पाते हैं, हम इसे देख नहीं पाते. जो मूविंग एयर होती है, जैसे हवा जो चल रही होती है, वो विंड कहलाती है. और जो जेंटली मूविंग एयर होती है, जो बहुत धीरे धीरे चल रही होती है, स्मूथली चल रही होती है, वो क्या कहलाती है, वो ब्रीज कहलाती है. यूजेस ऑफ एयर. Moving air helps in the movement of sailboats. Wind helps to fly kites. Air helps in burning. We need air in the tires of our vehicles. Air helps to play a flute. Wet clothes dry fast on a windy or breezy day. Wind helps to move the blades of a windmill. A parachute needs wind to be able to do work and land you safely on the ground. So children, here some uses of airs are given, like air helps the sailboat to move. Wind helps the kite to fly. It helps in burning. We need air in tire of vehicles, like in cars. You see, we fill air in the tire. Air helps to play a flute. Simultaneously, air needs to dry our wet clothes. So these are the uses of air. Air जो है ये हमें यूज़ कहाँ हम इसकी करते हैं. एयर जो होते हैं सेल बोट्स को चलाने में हेल्प करती है, काइट को फ्लाई करने में हेल्प करती है, बर्निंग ऑफ फायर में ये हेल्प करती है, जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं इन्हें ये सुखाने में हेल्प करती है. आपने व्हीकल्स के टायर में देखा होगा, उसके अंदर भी हवा जो है भरी जाती है. बांसुरी बजाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है. तो ये सारे यूजेस हमें बताए गए हैं एयर के. नाउ मेकिंग एयर डर्टी. स्मोक फ्रॉम कार्स, buses, trucks, etc. make the air dirty. Smoke released from factories, burning waste, etc. also make the air dirty. Like we read upward, we read that air is colorless, but
we make the air dirty by the smoke of the vehicles, burning waste and the smoke released from the factories. It make the air dirty and it make the air impure. तो बच्चों एयर डर्टी कैसे होती है? हमने ऊपर पढ़ा था एयर का कोई कलर नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा जब धूल भरी आंधी होती है, स्मोक होती है, धुआं जो होता है ये एयर को क्या बनाता है? ये एयर को डर्टी बनाता है। जो फैक्ट्रीज वगैरह से धुआं निकलता है वो कहाँ मिक्स हो जाता है? वो एयर में ही मिक्स हो जाता है, जो उसे इम्प्योर बनाता है। टेक ब्रेक, डिसीजन मेकिंग बेस्ड. Put a tick for the correct and cross for the incorrect statements. So children, some statements are given here. You have to tick the correct statement and cross the incorrect statement. Like air fills in space. So air is everywhere. So it is correct statement. You will tick here. Air has no smell. Yes, it is true. Air has no smell. So you will tick it. Moving air is called wind. It is true, it is correct, and air is not important for us. It is wrong, it is incorrect. Air is very important for us. So you will cross it. तो बच्चों एयर के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें दी गई है, आपको पढ़ना है और जो स्टेटमेंट करेक्ट है उस पर आप टिक लगाएंगे, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको लगती है, गलत लगती है, तो वहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। जैसे एयर जो है वो स्पेस में फैली हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। एयर हैज़ नो स्मेल, एयर की वैसे कोई स्मेल नहीं होती, तो ये भी करेक्ट है। मूविंग एयर जो होती है वो विंड कहलाती है, ये भी करेक्ट है। और एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आप इसे क्रॉस करेंगे। नाउ वाटर, वी ऑल नीड वाटर जस्ट लाइक अस, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू मेक फूड। वी नीड वाटर फॉर डूइंग मैनी थिंग्स। सो like air, water is very essential for us. In day-to-day life, we need water for different work. Plants also need water to make their food. तो एयर की तरह पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, कुकिंग करते हैं, या अपनी कार वॉश करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। और हमारी तरह प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन फिल्स अप ponds, lakes and rivers. This water is cleaned and sent to our homes through pipes. The sea has plenty of water, but it is salty. We cannot use it. There is very little fresh water available on the earth. So we have to be careful using it. So children, the main source of water is rain. We get the drinkable water from rain. So the rain fills the ponds, lakes and rivers, and then we dig the well and we get the drinkable water from that. The salty water, the ocean water is not drinkable because it is full of salt. So we depend for our drinking water on rain. That's why we should use water carefully. तो बच्चों जो वाटर का सोर्स है, जो मेन सोर्स है, वो रेन ही मानी जाती है। रेन से वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं? डिग करते हैं और फिर हम वेल के थ्रू, कुएं के थ्रू जो पानी है पीने का उसको बाहर निकालते हैं। जो ओशन का पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, सॉल्टी होता है। इसीलिए जो मेन सोर्स है पानी का वो हमें रेन से ही मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि हमें पानी को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। डू यू नो सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल टू फॉर्म अंडरग्राउंड वाटर। सो सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो कुछ पानी जो है रेन का वो ज़मीन में समा जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। नाउ सेविंग वाटर, the water that is suitable for drinking is limited, so we should not waste water. Given below are some tips to save water. Do not waste water while bathing. Get the leaking taps fixed. Never keep the tap open while brushing the teeth. Tell others about the importance of saving water. So water is very essential for us, and the drinking water, drinkable water is very limited.
So we should waste water very carefully. We should use water very carefully. Some tips are given here like we should not waste extra water when we are bathing. We should take limited water for bathing. We should fix the leaking taps. We should never leave the tap open when we are brushing our teeth, and we should make others aware about saving water. पानी जो है वो हमारे बहुत ज़रूरी है, और जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही क्या है, हमें कम मिलता है। इसलिए हमें पानी को बहुत ही बचा कर रखना चाहिए, इसे हमें यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी हम नहा रहे होते हैं तो हमें लिमिटेड पानी लेना चाहिए। जो भी आपके लीकिंग टैब्स हैं आपको उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें टाइम पे फिक्स कर देना चाहिए। जब भी आप ब्रश कर रहे होते हैं तो आपको टैप को, नलके को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए अबाउट सेविंग वाटर। चैप्टर कवर अप। All living beings need air and water to live. Air takes up space. Moving air is called wind. Smoke makes the air dirty. Water is used for drinking, bathing, cooking, etc. We must not waste water. So children, in this chapter we have learned about air and water, their uses and their importance. इस चैप्टर में हमने एयर और वाटर के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हमने जाना। थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A, tick the correct answer. This helps in the movement of sailboats. A, sand. B, moving air. C, moving water. So children, you have to tell among these options what helps in the movement of sailboat. So it is ऑप्शन बी, मूविंग एयर। आपको बताना है सेल बोट के मूवमेंट में क्या चीज़ हेल्प करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है मूविंग एयर। सेकंड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर डैश। ए, ब्रीदिंग। बी, रनिंग। सी, कुकिंग। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर व्हाट? फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत होती है। सो यू विल राइट ब्रीथिंग एयर और यू विल टिक द ऑप्शन ए। थर्ड, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ऑप्शन ए, विंड। ऑप्शन बी, एयर। और ऑप्शन सी, रेन। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इट इज़ रेन। रेन जो है ये मेन सोर्स माना जाता है धरती पर किसका? पानी का। फोर्थ, वी शुड नॉट वेस्ट डैश। Option A, air. Option B, clothes. Option C, water. So we should not waste water. हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे वाटर लिखेंगे और ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। फिफ्थ, डैश ऑल्सो नीड वाटर टू मेक फूड। ऑप्शन ए, एनिमल्स। ऑप्शन बी, प्लांट्स। ऑप्शन सी, वुड। यू हैव टू टेल चिल्ड्रन व्हाट अमंग दीज नीड्स वाटर टू मेक फूड। सो द करेक्ट आंसर इज प्लांट। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर टू मेक फूड। इनमें से किसे अपना खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? तो करेक्ट आंसर है प्लांट्स। प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड व्हाट? ब्रीज। सो यू विल राइट ब्रीज एयर। जो जेंटली मूव कर रही होती है उसको हम, उस एयर को क्या कहते हैं? उसे हम ब्रीज कहते हैं। सेकेंड, डैश हेल्प्स टू फ्लाई kites. So the correct answer is air. Air helps to fly kites. हमें पतंग उड़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की। तो हम यहाँ पे हवा एयर लिखेंगे। थर्ड, wet clothes dry fast on a dash or dash days. Wet clothes are dry on what? When sunny or airy day. Wet clothes जो है वो कब सूखते हैं? जब आपका डे जो होता है सनी होता है, अच्छी खासी धूप निकली होती है और हवा चल रही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सनी एंड एयरी लिखेंगे। फोर्थ, द सी हैज़ प्लेंटी ऑफ डैश। सी में क्या पाया जाता है? प्लेंटी ऑफ सॉल्ट। सो यू विल राइट सॉल्ट हेयर। फिफ्थ, वाटर इज यूज फॉर डैश डैश एंड डैश एक्सेट्रा। वाटर इज यूज फॉर, वेयर वी यूज वाटर? We use water for cooking, we use water for bathing, and we use water for washing. So you will write water is used for cooking, bathing and washing, etc.
पानी कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत होती है, पानी की कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आप काफ़ी ऑप्शन लिख सकते हैं, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। C. State whether the following statements are true or false. You have to read the statements and you have to tell whether it is true or false. Clean air is colorless. So, is it true or false? It is true. Clean water is colorless. So, you will write true here. Clean air जो होती है, साफ सुथरी हवा जो होती है, उसका कोई कलर नहीं होता. Second, air and water is not necessary for us. Is it true or false? It is false. Both are necessary for us. एयर और वाटर जो है, हवा और पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे false लिखेंगे. थर्ड, एयर हेल्प्स टू प्ले अ फ्लूट. इज इट ट्रू और false? इट इज़ ट्रू. एयर जो होती है ज़रूरी होती है बांसुरी बजाने के लिए. फोर्थ, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. इज इट ट्रू और false? इट इज़ ट्रू. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन, बारिश जो है वो ही मेन सोर्स माना जाता है पानी का. फिफ्थ, डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग. इज इट ट्रू और false? इट इज़ ट्रू. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग. नहाते समय हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना पानी हमें चाहिए नहाने के लिए उतना ही यूज़ करना चाहिए. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट एनी 3 यूजेस ऑफ एयर. You have to write 3 uses of air, like it moves the sailboat, or it helps the sailboat to move, it makes the wet cloths dry, or it helps in blowing a flute or playing a flute. आपको यहाँ पे 3 uses of air लिखने हैं कि एयर किस किस काम आती है. ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. आपने चैप्टर में पढ़ा है, ये सेल बोट को मूव करने में हेल्प करती है, काइट्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है, बांसुरी बजाने में हेल्प करती है, और जो गीले कपड़े होते हैं उनको सुखाने में ये हेल्प करती है. सेकेंड, हाउ डज एयर गेट डर्टी. यू हैव टू टेल हियर और यू हैव टू मेंशन द रीजन हाउ द एयर गेट डर्टी. सो एयर गेट डर्टी थ्रू द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. आपको बताना है एयर डर्टी कैसे हो जाती है. एयर डर्टी हो जाती है जो फैक्ट्री से, जो कार से, व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसकी वजह से. थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. यू हैव टू टेल हियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, पॉन्ड यू कैन राइट, एंड यू कैन राइट रिवर्स एक्सेट्रा. आपको यहाँ पे सोर्सेज बताने हैं वाटर के कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. तो पहला जो मेन सोर्स है वो होता है रेन. बारिश से हमें पानी मिलता है पीने के लिए. उसके बाद आप पॉन्ड लिख सकते हैं, रेन वगैरह लिख सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड वाटर. यू हैव टू टेल द नीड ऑफ वाटर. व्हाई डू वी नीड वाटर? वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, टू स्टे अलाइव. वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग. तो आपको यहाँ पे बताना है बच्चों कि हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है. पानी की ज़रूरत होती है हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए. फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी सेव द वाटर. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल हाउ वी कैन सेव द वाटर. वी कैन मेक पीपल अवेयर टू save the water. Do not waste water. When you are brushing your teeth, we should close the taps. We should fix the leaking taps. That's how we can save the water. यहाँ पे पूछा गया है कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं. तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, बता सकते हो, उन्हें जागरूक कर सकते हो कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जब भी हम नहा रहे होते हैं या जब भी हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें अपने टैप्स को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. और अगर हमारे टैप्स लीक कर रहे हैं तो उनको भी हमें टाइम से फिक्स करना चाहिए. Out of the box critical thinking. Some people use a bucket of water for taking bath while others use a shower. Which of the two ways can helps us to save water? How? So children, here two statements are given. Some people use bucket but some people use shower to take bath. You have to tell which of the both way, two way can help us to save water. So the first statement, you can use a bucket can save water. When you open a shower, it flows extra water and it wastes extra water. When you take one bucket water to bath, it will save extra water from flowing out.
यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी गई है। कुछ लोग जो होते हैं वो बकेट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं शावर का यूज़ करते हैं नहाने के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका सही है पानी को सेव करने का। तो बकेट वाला तरीका जो है वो सही है पानी को सेव करने का, क्योंकि जब आप शावर लेते हैं तो क्या होता है, जो जितना पानी आपके बॉडी पे जाता है उसका एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो साइड से निकल रहा होता है, वो एक्स्ट्रा पानी क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बकेट से आप क्या करते हो, आप मग से पानी डालते हो एक एक करके और फिर आप नहाते हो, तो वो तरीका बेस्ट है नहाने के लिए। शावर लेने से क्या होता है, पानी एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है, वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट है। जब भी आप भी नहाओ तो आप बकेट लेकर ही नहाओ। Crosslinks physical media development. Harpreet with some of his cousins went for a walk to a nearby park. In the park, they bought a water bottle of 15 rupees and 3 balloons of 5 rupees each. How much money did they spend all together? So a situation is given here. Harpreet went to a park with his cousins. They bought a water bottle of rupees 15 and they bought 3 balloons of rupees 5 each. Like one balloon they bought it for 5 rupees. So they bought 3 balloons. So you have to tell how much money they spent all together. तो हरप्रीत एंड उसके कजन जो हैं कहाँ गए, पार्क में गए थे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 15 रुपए की एक वाटर बॉटल खरीदी और उन्होंने 3 बलून खरीदे अलग अलग 5 रुपए के। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितने पैसे वहाँ पे खर्च किए। सो 3 बलून कॉस्ट 5 रुपीज़ ईच, अकॉर्डिंगली इट कॉस्ट देम 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ दे स्पेंड फॉर वाटर बॉटल, सो इन टोटल दे स्पेंड 30 रुपीज़। उन्होंने 30 रुपीज़ खर्च किए। 15 रुपये उन्होंने वाटर बॉटल में खर्च किए और 5-5 के उन्होंने 3 बलून लिए, तो कितने हो गए, 15। 15 को आपने प्लस किया तो 30 रुपीज़ हो गए। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise by yourself.